بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، حرارتی حرکیات کا پہلا قانون. اس کا بیان ہے اسٹیٹمنٹ ان اینی تھرموڈائنامک پروسیس، کسی بھی حرارتی حرکیاتی عمل میں، یعنی کسی بھی ایسے عمل میں جس میں حرارت کا بہاؤ ممکن ہوتا ہے. حرارت بہتی ہے، اندرونی توانائی کوئی جسم کی بڑھتی ہے اور کچھ حرارت کام میں خرچ ہو جاتی ہے. تو ایسے عمل میں when heat Q is added to a system، جب حرارت Q کسی نظام میں داخل ہوتی ہے، this heat energy increases the internal energy delta U of the system، اور پھر وہ حرارت جو داخل ہوتی ہے وہ نظام کی اندرونی توانائی میں ڈیلٹا یو اضافہ کر دیتی ہے. اندرونی توانائی ڈیلٹا یو اس میں اضافہ کر دیتی ہے، پلس دا ورک ڈن ڈبلیو بائی دا سسٹم، اور جمع پھر کوئی نظام کام کرتا ہے، وہ نظام کام کرتا ہے آن اٹس سراؤنڈنگ، اپنے گرد و پیش پر، اپنے گرد و پیش پر وہ نظام کوئی کام کرتا ہے. یعنی جب بھی کیو حرارت کسی جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ حرارت اس کی اندرونی توانائی ڈیلٹا یو میں اضافہ کرتی ہے، جمع وہ حرارت کچھ کام کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے، گرد و پیش پر وہ نظام کام کرتا ہے. تو دس از کالڈ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، یہ حرارتی حرکیات کا پہلا قانون کہلاتا ہے، اور لا آف کنزرویشن آف انرجی یا قانون بقائے توانائی بھی کہلاتا ہے. قانون بقائے توانائی کیوں کہ ڈیلٹا کیو حرارت نظام میں داخل ہوتی ہے اور اسی حرارت کا ایک حصہ نظام کی اندرونی توانائی ڈیلٹا یو بڑھانے میں خرچ ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ کچھ کام کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے، یعنی کل توانائی ایک جیسی رہتی ہے. تو حرارتی حرکیات کا پہلا قانون یا لا آف کنزرویشن آف انرجی، قانون بقائے توانائی، یہ دونوں ایک ہی قانون کے نام ہیں. ایکسپلینیشن، وضاحت ہے فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس حرارتی حرکیات کے پہلے قانون کی. when heat is added to a gas containing system، جب حرارت کسی گیسی نظام میں داخل کی جاتی ہے، ایسا نظام جو گیس پر مشتمل ہوتا ہے اس میں حرارت داخل کی جاتی ہے، تو there is an increase in internal energy due to rise in temperature، اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کے باعث اس کی اندرونی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے بھی پڑھا. an increase in pressure، کیا ہوتا ہے؟ دراصل دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ گیس سلنڈر کی دیواروں پر ڈالتی ہے. تو an increase in pressure، یا اب ہم کہہ سکتے ہیں change in state، یا اس کی حالت میں تبدیلی آتی ہے، اس نظام کی حالت میں تبدیلی آتی ہے. حالت میں تبدیلی والے عوامل پہلے پڑھے ہم نے کہ وہ دباؤ ہے، وہ حجم ہے، وہ درجہ حرارت ہے، وہ اندرونی توانائی ہے. تو یہ اسٹیٹ ویریبلز ہیں، یہ متغیرات ہیں، حالت میں تبدیلی پیدا کرنے والے، یعنی گیس کے نظام کی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے والے متغیرات ہیں. تو ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو سادہ سا مطلب بنتا ہے اس جملے کا کہ جب حرارت کسی گیس کے نظام میں داخل ہوتی ہے تو اس کی اندرونی توانائی میں اضافہ کر دیتی ہے اس کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے. اور این انکریز ان پریشر، دراصل دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے، اور چینج ان اسٹیٹ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے. سپوز U1 از دا انیشیل انٹرنل انرجی ان ایکولیبریم اسٹیٹ، فرض کریں کہ U1 جو ہے وہ اس نظام کی اندرونی توانائی ہے، ابتدائی اندرونی توانائی ہے حالت توازن میں، توازن کی حالت میں اندرونی ابتدائی توانائی ہے. if Q is the heat supplied to the system، اگر Q جو ہے وہ حرارت جسم کو دے دی جائے، Q حرارت دینے سے پہلے اس کی اندرونی توانائی تھی U1، نہ حرارت جسم میں داخل ہوئی تھی نہ باہر آئی تھی، توازن کی حالت میں اس کی اندرونی توانائی تھی U1. اب حرارت Q ہم نے اس نظام کو دے دی ہے، and the internal energy of the system increases to U2، اور اس کی وجہ سے اس کی اندرونی توانائی میں اضافہ ہو جائے گا U2. پہلے U1 تھا اور اب بڑھ کر اندرونی توانائی U2 ہو جائے گی ان دا فائنل اسٹیٹ، اور اس کی حالت آخری حالت میں توانائی اس کو Q حرارت ملنے کے بعد. اینڈ ورک ڈن W بائی دا سسٹم، اور کوئی وہ نظام کچھ کام کرے گا، یعنی پسٹن کو اوپر اٹھائے گا، تب حرارت Q جو ہے وہ U2 منفی U1 جمع W. پہلے جو ہم نے بتایا کہ جو حرارت Q ہے وہ کچھ اندرونی توانائی بڑھانے میں خرچ ہو جائے گی U2 منفی U1، اور کچھ کام میں خرچ ہو جائے گی W، اور اس کو ہم نے مساوات کی صورت میں لکھ دیا. اسی کو ہم نے اس طرح مساوات کی صورت میں لکھا Q برابر
U1 मनफी U2 की जगह डेल्टा U लिख दिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जमा W, हरारती हरकियात के पहले कानून को इस मसावत की सूरत में लिख दिया। Q हरारत निज़ाम में दाखिल हुई थी, डेल्टा U अंदरूनी तवानाई बढ़ी थी और W कुछ काम हुआ था। मसावत नंबर 1, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हरारती हरकियात के पहले कानून की हिसाबी सूरत है, यानी मसावत की सूरत है। साइन कन्वेंशंस, जो अलामत की रवायत है, अलामत की रवायत किस तरह से होगी, हरारत को जमा और काम को जमा नफ़ी किस तरह से लिखेंगे। तो इन द अबव रिलेशन नंबर 1, मसावत नंबर 1 में जो ऊपर लिखी है, वी टेक द फॉलोइंग कन्वेंशन, हम मंदरजा झैल रवायत पर अमल करते हैं। क्या है पहली रवायत, द साइन ऑफ क्यू इज टेकन पॉजिटिव, जो हरारत क्यू जो निज़ाम में दाखिल होती है उसे मुस्बत लेते हैं। व्हेन हीट एंटर द सिस्टम, जब हरारत जिस्म में दाखिल होती है, जब हरारत किसी निज़ाम में दाखिल होती है तो उसे मुस्बत लिया जाता है। एंड नेगेटिव और मनफी लेते हैं व्हेन हीट लीव द सिस्टम, जब हरारत जिस्म को छोड़ती है, जिस्म से बाहर निकलती है, उसको उस वक्त मनफी ली जाती है। और दूसरी रवायत है, साइन ऑफ W इज पॉजिटिव, काम की कीमत मुस्बत लिखी जाती है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब काम निज़ाम के ज़रिए होता है, यानी निज़ाम गिरदोपेश पर काम करता है। वे निज़ाम जो है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो निज़ाम गिरदोपेश पर काम कर रहा होता है। तो साइन ऑफ W इज पॉजिटिव, W की अलामत जो है वो मुस्बत होगी। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब काम निज़ाम के ज़रिए वकू पज़ीर होता है। एंड नेगेटिव और काम की कीमत मनफी होगी। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब काम जो है वो निज़ाम पर होता है, यानी गैस को दबाया जाता है, ऊपर पिस्टन नीचे की तरफ गैस को दबाता है, तो हम कहते हैं कि गैस पर, सिस्टम पर, निज़ाम पर काम हो रहा है। तो ये है अलामत की रवायात। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अंदरूनी तवानाई में तब्दीली। फ्रॉम इक्वेशन 1, मसावत नंबर 1 में, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज डिफाइंड एज, जो अंदरूनी तवानाई में तब्दीली, उसकी तारीफ इस तरह से की जाती है, यही मसावत जो पहले लिखी थी, Q बराबर डेल्टा U जमा W, उसमें से डेल्टा U को अलग करके लिख लिया। तो डेल्टा U बराबर Q मनफी W, इससे मसावत नंबर 2 के ज़रिए लिखा। बात बड़ी वाज़ेह सी है कि कुल जो हरारत दाखिल हुई है निज़ाम के अंदर, उसमें से काम की मिकदार को निकाल दें तो बाकी अंदरूनी तवानाई बच जाएगी। तो दैट इज़, ये क्या बात है कि डेल्टा U की क्या तारीफ होगी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो अंदरूनी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली बराबर इज इक्वल टू, वो बराबर होगी किसके, द एनर्जी फ्लोइंग इन एज हीट, जो अंदर की तरफ हरारत बह रही है बतौर हरारत, जो अंदर की तरफ तवानाई बह रही है बतौर हरारत, जो क्यू की बात हो रही है, जो निज़ाम के अंदर दाखिल हो रही है, द इक्वल टू एनर्जी फ्लोइंग इन, जो अंदर की तरफ तवानाई बह रही है एज हीट, हरारत की सूरत में, माइनस द एनर्जी फ्लोइंग आउट, मनफी, जो तवानाई बाहर की तरफ बह रही है एज वर्क, काम की सूरत में। जो अंदरूनी तवानाई की तारीफ है कि जो निज़ाम के अंदर तवानाई बह रही है हरारत की सूरत में, क्यू की बात हो रही है, और उसमें से मनफी कर दिया वो तवानाई जो काम की सूरत में बाहर की तरफ बह रही है, यानी Q मनफी W। थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर है, बाकी बात वही है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हरारती हरकियात के पहले कानून की इस्तेमालात, इत्तलाकात। इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है न, पहला इस्तेमाल है आइसोथर्मल प्रोसेस, यकसा हरारती अमल, यकसा दर्जा हरारत का अमल, ऐसा अमल जिसमें दर्जा हरारत को यकसा रखा जाता है। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा अमल जिसमें निज़ाम के दर्जा हरारत को यकसा रखा जाता है, इस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे हम तफसील पढ़ेंगे, इसको कहते हैं यकसा हरारती अमल। एक्सप्लेनेशन, वजाहत है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यकसा हरारती अमल में या यकसा तपशी अमल में, कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, जो बॉयल के कानून की जो शराइत हैं
وہ استعمال میں لائی جاتی ہیں آن دا گیس از فلفلڈ. جو گیس کے اوپر بوائل کا قانون لاگو کیا جاتا ہے اس کی شرائط پوری کی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوائل کا قانون کیا ہے کہ یکساں درجہ حرارت پر، یہ درجہ حرارت میں کمی بیشی نہیں ہوگی. اگر نہ ہو تو اس دباؤ بڑھانے سے گیس کا حجم کم ہوتا ہے، دباؤ گھٹانے سے حجم بڑھتا ہے. یعنی P is inversely proportional to V. جو دباؤ ہے وہ بالعکس متناسب ہوتا ہے حجم کے. دباؤ بڑھے حجم کم، دباؤ کم ہو تو حجم بڑھ جائے. تو ایسی صورت میں جو درجہ حرارتی یکساں رکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں جو آئسوتھرمل پروسیس ہے، یکساں حرارتی عمل، اس میں بوائل کے قانون کی شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو آئسوتھرمل پروسیس کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو 2 پارٹس. جو یکساں تپشی عمل ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا آئسوتھرمل ایکسپینشن، یکساں تپشی پھیلاؤ. یکساں تپشی پھیلاؤ، تپش کو، درجہ حرارت کو یکساں رکھ کر گیس کو پھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے. نمبر 2 آئسوتھرمل کمپریشن، تو یکساں تپشی دباؤ، گیس کی تپش کو یا درجہ حرارت کو یکساں رکھ کر اس کو دبایا جاتا ہے. یہ دونوں عوامل ہیں، آگے چل کر ان کی قدر تفصیل بھی ہم پڑھیں گے. پہلا ہے آئسوتھرمل ایکسپینشن، یکساں حرارتی پھیلاؤ. یکساں تپشی پھیلاؤ، تپش کو، حرارت کو یا درجہ حرارت کو یکساں رکھ کر گیس کو پھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اس لیے اس عمل کو آئسوتھرمل ایکسپینشن کہا جاتا ہے، یکساں حرارتی پھیلاؤ. کنسیڈر سسٹم ان وچ اے گیس از فلڈ. ہم ایک نظام لیتے ہیں جس میں گیس بھری جاتی ہے ان اے سلنڈر. ایک سلنڈر کے اوپر مشتمل نظام ہے جس کے اندر گیس بھری گئی ہے اور بائی اے موویبل اینڈ فرکشن لیس پسٹن، اور اس سلنڈر کے اوپر قابل حرکت اور بے رگڑ پسٹن لگا ہوا ہے. ایک سلنڈر ہے اور اس کے اندر گیس بھری گئی ہے، سلنڈر کے اوپر پسٹن لگا ہوا ہے جو کہ حرکت کر سکتا ہے اور بے رگڑ ہے. لیٹ دا سلنڈر از پلیسڈ آن اے ریزروائر ایٹ ٹیمپریچر T. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو سلنڈر ہے وہ ایک گرم برتن کے اوپر رکھا گیا ہے جس کا درجہ حرارت T ہے. اف دا ویٹ، کیونکہ حرارت سلنڈر کے اندر باہر سے داخل ہوگی جسے ہم نے پہلے Q سے ظاہر کیا ہوا تھا. اف دا ویٹ آن دا پسٹن از ڈیکریزڈ سلائٹلی، اگر پسٹن کا وزن ہم آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں، اینڈ دین از الاؤڈ ٹو ایکسپینڈ دا گیس ویری سلولی، اور تب گیس کو آہستہ آہستہ پھیلنے کا موقع دیتے ہیں. پسٹن کا وزن کم کیا اور گیس کو آہستہ آہستہ پھیلنے کا موقع دیا، سو دیٹ اٹس ٹیمپریچر ریمینز کانسٹنٹ. اس طرح موقع دیا پھیلنے کا کہ گیس کا درجہ حرارت یکساں رہے. آپ جانتے ہیں کہ گیس جب پھیلے گی، پسٹن اوپر اٹھے گا تو گیس کا درجہ حرارت کم ہوگا. گیس پھیلتی ہے تو اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اس کی اندرونی توانائی کم ہوتی، سیدھی سی بات ہے. جو اندرونی توانائی میں کمی ہوگی وہ جو گرم برتن پر رکھا گیا ہے اس برتن سے Q حرارت اس کے اندر داخل ہو جائے گی، اتنی ہی داخل ہوگی تاکہ اس کا درجہ حرارت یکساں رہے. جتنا پسٹن کو اٹھانے کے لیے حرارت استعمال ہو جائے گی اتنی اس میں داخل ہو جائے گی. اس طرح درجہ حرارت یکساں رہے گا. ایز گیس ایکسپینڈ، جو ہی گیس پھیلے گی، اٹ پشز دا پسٹن اپورڈ، یہ پسٹن کو اوپر کی طرف اٹھائے گی. اینڈ سم ورک از ڈن بائی دس گیس، اور گیس کے ذریعے سے کچھ کام ہوگا، یعنی گیس کچھ کام کرے گی اور یہ کام ہوگا یکساں درجہ حرارت کے اوپر اور ہوگا گیس کے پھیلنے سے. Thus the sign of W is positive. کام کی علامت مثبت لکھی جائے گی کیونکہ کام نظام کے ذریعے ہوگا. ورک از ڈن بائی دا سسٹم، سسٹم کے ذریعے، نظام کے ذریعے کام ہوگا. پسٹن اوپر اٹھے گا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے. بیکاز دا ٹیمپریچر آف گیس از کیپٹ کانسٹنٹ، ہم جانتے ہیں کیونکہ درجہ حرارت گیس کا یکساں رہے گا. دیر فور دا چینج ان اٹس انٹرنل انرجی از زیرو، کہ اس گیس کی اندرونی توانائی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، تبدیلی صفر واقع ہوگی. درجہ حرارت یکساں رہے گا، سیدھی سی بات ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس، حرارتی حرکیات کے پہلے قانون کی مدد سے ڈیلٹا یو برابر صفر، جو اندرونی توانائی ہے وہ صفر، چونکہ درجہ حرارت صفر ہو جائے گا. کیو برابر ڈیلٹا یو جمع ڈبلیو،
डेल्टा यू सिफर आ गया तो क्यू बराबर हो गया डब्ल्यू, यानी कि जितनी हरारत नीचे से सिलेंडर को जाएगी गर्म बर्तन से, सारी की सारी काम में खर्च हो जाएगी। एज द साइन ऑफ क्यू इज पॉजिटिव, क्योंकि क्यू की अलामत मुस्बत है, क्यों दाखिल हो रही है निज़ाम के अंदर, हरारत निज़ाम में या सिलेंडर में दाखिल हो तो उसकी अलामत भी हम मुस्बत लिखते हैं, और काम भी निज़ाम के ज़रिए से हो तो वो भी मुस्बत होता है। एज अ साइन ऑफ क्यू इज पॉजिटिव, क्यू की अलामत भी मुस्बत है। सो हीट एंटर्स अ गैस ड्यूरिंग इट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन, के यकसा हरारती फैलाव के दौरान सिलेंडर के अंदर या गैस के अंदर हरारत दाखिल होती है, क्योंकि जब हरारत फैलती है तो उसकी अंदरूनी तवानाई कम होती है, दर्जा हरारत कम होता है, तो जितनी काम के लिए इस्तेमाल होती है, जितनी कम होती है उतनी बाहर से मिल जाती है, वो क्यों मिल जाती है। द टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और यहां पे साबित हुआ कि कुल हरारत जो है वो काम में तब्दील हो जाती है। दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यकसा हरारती दबाव। पहले हमने यकसा हरारती फैलाव पढ़ा था, उसमें दर्जा हरारती यकसा रख कर गैस को फैलने का मौका दिया था। अब यकसा हरारत, यकसा दर्जा हरारत रख कर गैस को दबाया जाएगा, और गैस दबाने से आपको पता है कि दबाव बढ़ाने से गैस पर उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ जाती है, यानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो हरारत बढ़ जाएगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी हरारत को बाहर निकालने से दर्जा हरारत यकसा रखा जाएगा। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑन द पिस्टन, अगर गैस को दबाया जाए आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर वजन को बढ़ाकर, गैस के ऊपर पिस्टन के वजन को बढ़ाकर गैस को आहिस्ता आहिस्ता अब दबाया गया है। हमने दर्जा हरारत यकसा रखना है, ये बात जहन में रखनी है। सो दैट द टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, इस तरह से दबाया गया गैस को कि उसका दर्जा हरारत यकसा रहे, क्योंकि दबाने से उसकी अंदरूनी हरारत बढ़ जाएगी, दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, हरारत बढ़ जाएगी, जो बढ़ेगी हरारत उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। दस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू विल बी जीरो, इस तरह जो अंदरूनी तवानाई है वो अंदरूनी तवानाई की कीमत जो है वो सिफर हो जाएगी। अंदरूनी तवानाई की कीमत सिफर नहीं होगी, अंदरूनी तवानाई में तब्दीली सिफर हो जाएगी, क्योंकि जो हरारत दबने, गैस के दबने से उसमें इजाफा हुआ है वही हरारत बाहर निकाल दी गई है। इस तरह द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू विल बी जीरो, जो अंदरूनी तवानाई में तब्दीली है वो सिफर हो जाएगी। इन दिस केस सम वर्क इज डन ऑन द गैस, इस केस में, इस मामले में कुछ काम गैस पर होगा, कुछ काम गैस पर, क्योंकि पिस्टन नीचे दबेगा। एंड सो द साइन ऑफ डब्ल्यू इज नेगेटिव, इस तरह काम की अलामत मनफी होगी। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर निज़ाम काम करे तो वो काम मुस्बत, अगर निज़ाम के ऊपर काम हो तो वो काम मनफी होगा। दस द साइन ऑफ क्यू इज आल्सो नेगेटिव, क्यू भी मनफी होगी, क्योंकि दबाने से जो अंदरूनी तवानाई बढ़ी है, अंदरूनी हरारत बढ़ी है, उसे हमने बाहर निकाला है। साइन ऑफ क्यू इज आल्सो नेगेटिव, क्यू की अलामत भी मनफी होगी, बिकॉज हीट क्यू लीव्स द गैस, हरारत क्यू ने गैस को छोड़ा है, गैस से बाहर निकली है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हरारती हरकियात के पहले कानून की मदद से, क्योंकि डब्ल्यू भी मनफी, क्यू भी मनफी और डेल्टा यू सिफर, दोनों की कीमतें लिखी, मनफी क्यू बराबर मनफी डब्ल्यू, मनफी मनफी से कट गया, क्यू बराबर डब्ल्यू, यानी जितना काम ऊपर होगा, जितनी हरारत काम ऊपर होगा उतनी हरारत जिस्म से बाहर निकल जाएगी। ये यकसा दर्जा हरारत के ऊपर दबाव है। That is all the work done on the gas is converted into heat, काम गैस पर जितना भी होगा सारे का सारा हरारत में तब्दील हो जाएगा, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द हीट रेजर्वायर, जिसे ठंडा जिस्म बर्तन जो है वो जज्ब कर लेगा। पीछे जो हमने पढ़ा Q बराबर W, कि जो भी काम हुआ है गैस के ऊपर, उसने गैस को दबाया है, गैस में हरारत बढ़ी है, दर्जा हरारत बढ़ा है, जो हरारत बढ़ी है वो ठंडे बर्तन ने जज्ब कर ली है, हीट रेजर्वायर। व्हेन गैस एक्सपैंड और कंप्रेस आइसोथर्मली, जब गैस को फैलाया जाता है या दबाया जाता है यकसा हरारती अंदाज से, उसके दर्जा हरारत को यकसा रखकर, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड
pressure during the process remains constant. उसके हुजम और दबाव का जो हासिल ضرب है इस अमल के दौरान वो यकसां रहता है। हुजम और दबाव का हासिल ضرب यकसां रहता है, ये बायस का कानून है। लेकिन आप देखिएगा गौर से सामने तस्वीर की तरफ कि जब P1 दबाव था, दबाव जो है वो y महवर पर है और जो हुजम है वो x महवर पर है। दबाव P1 था, गैस को दबाया गया, दबाव ज़्यादा था तो गैस का हुजम V1 था, यानी दबाव ज़्यादा था और हुजम कम था। वॉल्यूम V1, दबाव ज़्यादा P1 और हुजम x महवर पर कम आ गया V1। जब दबाव कम किया P1 से P2 आ गया, P2 दबाव कम है दूसरी हालत, तो दबाव कम किया गैस पर तो गैस फैल जाएगी, तो गैस फैलकर उसका हुजम V2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब दबाव ज़्यादा था हुजम कम था, दबाव कम है हुजम ज़्यादा है, एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी उतनी ही कम हो गई, पहली चीज़ कम हो गई तो दूसरी उतनी ही बढ़ गई। इसका मतलब ये कि दोनों का हासिल ज़रब एक जैसा होगा, एक जितनी कम हुई है उतनी दूसरी बढ़ गई है, तो हासिल ज़रब जो दोनों चीज़ों का वो यकसां रहेगा। कंसीडर P1 एंड V1 और द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द इनिशियल स्टेट। जो P1 है और V1 है तस्वीर के अंदर, वो इब्तदाई दबाव और इब्तदाई हुजम है किसी भी गैस का, इनिशियल स्टेट इब्तदाई हालत में। और इसी तरह P2 और V2 आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट, आखिरी हालत में जो दबाव P2 है और हुजम V2 है। साफ जाहिर बात है कि P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर कांस्टेंट। P1 बढ़ा है, V1 की कीमत कम हुई है, और P2 कम हुआ है और V2 की कीमत बढ़ी है, यानी जितनी एक की कम हुई है उतनी ही दूसरी बढ़ गई है, एक पहली बढ़ गई है दूसरी उतनी कम हो गई है, तो दोनों का हासिल ज़रब फिर यकसां रहेगा। इसके साथ तीसरी हालत भी होती P3 V3, तो वो भी यकसां ही होती। इसको सामने की तस्वीर में दिखाया गया है। जो खम है जहां लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, यकसां दर्जा हरारत आइसोथर्म, ये खम आइसोथर्म कहलाता है, यकसां हरारती ये खम। तो द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो खम आया है ये जाहिर करता है यकसां हरारती अमल को, और इस कॉल्ड आइसोथर्म, और इसको आइसोथर्म कहा गया है। दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस, हरारत नागुजार अमल। ना ही सिलेंडर में हरारत दाखिल होगी, ना ही सिलेंडर से बाहर आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं ना ही निज़ाम के अंदर हरारत दाखिल होगी, ना ही निज़ाम से बाहर आएगी। ए प्रोसेस इन विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, ऐसा अमल जिसमें हरारत ना दाखिल होगी ना ही निज़ाम से खारिज होगी, इस कॉल्ड एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे हरारत नागुजार अमल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन वजाहत है, एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हरारत नागुजार अमल है उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हरारत नागुजार फैलाव, और दूसरा एडियाबेटिक कंप्रेशन, हरारत नागुजार दबाव। हम यहाँ पे हरारत को गुजरने नहीं देंगे आर पार, निज़ाम के आर पार हरारत को नहीं गुजरने देंगे, गैस को फैलाएंगे भी और गैस को दबाएंगे भी। इस 2 तरीक़ों से काम वक़ूफ़ पज़ीर होगा। अब पहला है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हरारत नागुजार फैलाव। हरारत जिस्म में से आर पार नहीं होगी और गैस को फैलने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि नाम से जाहिर है। कंसीडर अ सिस्टम इन विच गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर, हम एक निज़ाम लेते हैं जिसमें गैस को सिलेंडर में भरा गया है बाय अ मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और किस तरह भरा गया है कि उसके ऊपर काबिले हरकत और बेरगड़ पिस्टन है, ऊपर ढकने के तौर पर काबिले हरकत और बेरगड़ पिस्टन लगाया गया है गैस के ऊपर। इफ़ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, अगर गैस को फैलने का मौका दिया जाता है, फैलने की इजाज़त दी जाती है, यानी ऊपर दबाव कम करके, सो दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन आर आउट ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो, इस तरह से उसको फैलने का मौका दिया है कि ना तो उस सिलेंडर से गैस बाहर निकल सकती है, ना बाहर सिलेंडर से हरारत बाहर निकल सकती है, ना बाहर से हरारत सिलेंडर की तरफ आ सकती है। तो इफ़ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड सो दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन आर आउट ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो, हरारत आर पार नहीं जा सकती।
एज द गैस एक्सपैंड, जो ही गैस फैलेगी, इट पुशेज द पिस्टन अपवर्ड, और ये पिस्टन को ऊपर उठाएगी। एंड वर्क इज डन बाय द गैस, और गैस के जरिए काम होगा एट द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ इट्स मालिक्यूल, गैस के जो मालिक्यूल है उसकी अंदरूनी तवानाई की कीमत पर काम होगा। गैस के जो मालिक्यूल है उसके अंदर जो उनकी जो अंदरूनी तवानाई है उसकी कीमत पर काम होगा जब गैस फैलेगी और पिस्टन ऊपर उठेगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, और गैस का दर्जा हरारत कम हो जाएगा। जाहिर बात है, गैस जब फैलती है तो उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि क्यू सिफर है, दर्जा हरारत कम हो बढ़े लेकिन हरारत जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए, ना ही अंदर से बाहर निकलनी चाहिए। क्यू बराबर 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा कि हरारती हरकियात का पहला कानून क्यू बराबर डेल्टा यू जमा डब्ल्यू, क्यू की कीमत सिफर हो जाएगी। क्यू की जगह सिफर लिखा तो बराबर डेल्टा यू जमा डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर मनफी डेल्टा यू। मनफी डेल्टा यू जाहिर करता है कि इसकी अंदरूनी तवानाई कम हो जाएगी, दर्जा हरारत कम हो जाएगा। जो ही गैस फैलेगी तो गैस का दर्जा हरारत या उसकी अंदरूनी तवानाई में कमी वाक़ हो जाएगी। एंड द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और काम जो है वो इस निज़ाम के ज़रिए से होगा। यानी सिलेंडर, गैस का जो सिलेंडर है वो काम करेगा, गैस फैलेगी और पिस्टन ऊपर उठेगा। और दूसरा एडियाबेटिक कंप्रेशन, हरारत नागुजार दबाव। इस अमल में भी हरारत को अंदर या बाहर नहीं आने दिया जाएगा और गैस को दबाया जाएगा। इफ द पिस्टन इज सडनली पुश्ड डाउनवर्ड, अगर पिस्टन को यकदम नीचे की तरफ धक्का दिया जाता है, धकेला जाता है, एन एडियाबेटिक कंप्रेशन काजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस टू रेज, और जो हरारत नागुजार दबाव है ये गैस के दर्जा हरारत को बढ़ा देगा, क्योंकि गैस दबेगी और दबने से उसके मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, उसकी अंदरूनी तवानाई या उसका दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस, अब गैस पर काम हुआ है, पिस्टन ने गैस पर काम किया है। द साइन ऑफ डब्ल्यू इज नेगेटिव, और जो काम की अलामत है वो मनफी होगी, क्यों तो सिफर होगी, नाम से ही जाहिर है। तो काम जो है वो सिलेंडर के निज़ाम के ऊपर होगा, इसलिए उसकी कीमत मनफी होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, उसकी मदद से क्यू तो सिफर था, सिफर बराबर हो गया डेल्टा यू जमा काम की कीमत चूंकि मनफी आ जाएगी तो मनफी दूसरी तरफ जाकर मुस्बत, डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। जो भी काम होगा वो उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में सर्फ हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि क्यू तो दाखिल नहीं होगी ना ही खारिज होगी। जो भी काम होगा वो उसकी अंदरूनी तवानाई बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। यानी पहले दर्जा हरारत कम हुआ था, अब जो दर्जा हरारत पहले कम हुआ था वो दर्जा हरारत अब बढ़ जाएगा, पहली अपनी असली हालत में दर्जा हरारत आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, मिसालें हैं हरारत नागुजार अमल की, एडियाबेटिक प्रोसेस की। द एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस आर, हरारत नागुजार अमल की मंदरजा झैल मिसालें हैं। नंबर 1, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर, टायर फटे हुए टायर में से यकदम हवा का निकलना। जब टायर फटता है तो यकदम हवा निकलती है। इस अमल के दौरान ना तो टायर में से हवा बाहर निकलती है और ना बाहर से अंदर आती है, तो ये हरारत नागुजार अमल के तहत होता है। और दूसरा, द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिंग, जहाँ से आवाज़ की लहरें गुजर रही हैं वहाँ तेज़ी से कहीं पे हवा फैलती है और कहीं पे दबती है। हम जब बात कर रहे होते हैं तो कहीं हमारे सामने जो हवा है वो कहीं दबती है कहीं खुलती है, तो जब दबती है तो दर्जा हरारत बढ़ता है, खुलती है तो दर्जा हरारत कम होता है। यानी ये सालमात या हवा के मालिक्यूलों के करीब आने और दूर हटने की वजह से दबाव और खलाव पैदा होता है। इसमें ये अमल दखल नहीं है कि बाहर से कोई हरारत आती है या अंदर से हरारत बाहर निकल जाती है। और तीसरी, क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा में बादलों का बनना, फ़ज़ा में बादलों की तश्कील। बादल बनने का अमल सब लोग जानते हैं कि समंदरों में जब धूप पड़ती है तो पानी बुखारात की शक्ल इख्तियार करता है और फ़ज़ा में ये बुखारात जहाँ ज़्यादा कसीफ हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, वहाँ बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और क़ता नज़र इसके
کہ نہ کوئی حرارت داخل ہوتی ہے جہاں پہ بادل بنتے ہیں، نہ وہاں سے حرارت نکلتی ہے۔ تو یہ حرارت ناگزار عمل کی چند مثالیں ہیں۔